زیادہ تر کی حالت نازک ہے۔ خیال رہے کہ شام میں خانہ جنگی کے دوران اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برازیل کی ریاست ساؤ پاولو میں ہوئے ایک بس حادثے میں 14 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ اس وقت ہوا جب کیوریٹیبا شہر میں ریو ڈی جنیرو جانے والی ایک مسافر بس سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ بس میں 54 افراد سوار تھے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے اسرائیل کو اپنی ہٹ دھرم کی پالیسیوں سے باز آنا ہوگا۔ نبیل العربی نے اسرائیل سے یہودی بستیوں کی تعمیرات پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ اور دیگر ممالک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کے احیاء اور خطے میں طویل مدت سے جاری تنازع کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ نے گزشتہ جولائی میں دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لاتے ہوئے آپس میں کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے ایک مدت کا تعین کیا تھا۔ تاہم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات پھر سے تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ عرب لیگ کے حالیہ اجلاس میں سیکرٹری جنرل نبیل العربی نے اسرائیل کی ہٹ دھرم پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے لیے سازگار ماحول ضروری ہے اور اس کے لیے اسرائیل کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا۔ نبیل العربی نے اسرائیل سے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیرات پر روک لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ وسياساتها المتعنتة وطلباتها المتكررة والمتغيرة لا يخلق المناخ المطلوب لنجاح هذه المفاوضات، وخاصة السياسة الاستيطانية التي تتعارض تماما مع أحكام القانون الدولي. لذلك كل هذه الممارسات وكل هذه الطلبات يجب أن تتوقف۔ نبیل العربی نے اسرائیل کی مشرقی سرحد پر فوجیوں کی موجودگی اور ان کی تعداد میں مزید اضافے کے اسرائیل کے منصوبے پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ادھر امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپی یونین بھی مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے کوشاں ہے۔ یورپی یونین نے چند روز قبل اسرائیل فلسطین کو ایک پیشکش کی ہے جس کے تحت اگر دونوں فریقین آپسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے کوئی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں 28 ممالک پر مشتمل یورپی بلاک تک رسائی دی جائے گی۔ تاہم مشرق وسطی کے لیے یورپی یونین کے ایلچی اینڈریس رینیکے نے حال ہی میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطین کے درمیان مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو یہودی بستیوں کی تعمیرات کے معاملے پر اسرائیل پر تہدیدات عائد کیے جانے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ ایران کے جوہری پروگرام پر طے پائے حالیہ معاہدے پر جنیوا میں اگلے دور کی بات چیت جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کا کہنا ہے کہ جن اصولوں پر معاہدہ طے پایا ہے اسی کی روشنی میں بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ گزشتہ نومبر میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں جنیوا میں ماہرین سطح کی ایک میٹنگ جاری ہے۔ تاہم اس دوران دونوں فریقین کے درمیان بعض معاملوں میں اختلافات کی خبر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کے مطابق میٹنگ کے دوران ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے جو کہ زحمت کا باعث بننے والے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کن موضوعات پر اختلافات ہوئے ہیں۔ امیدواریم که با همان اصولی که بهش اشاره کردم، یعنی تعهد به اونچه که مورد توافق قرار گرفته توسط دو طرف، حسن نیت و مهمتر از همه توجه به تصویر کلان که یک تصمیم سیاسی از سوی مسئولین سیاسی ایران و 5+1 هست، کار رو به پیش ببرند و مانع از ورود به موضوعاتی بشن که میتونه مسئله ساز باشه و کار رو با دشواری مواجه کنه۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شامی بحران کے سفارتی حل کے سلسلے میں مجوزہ جنیوا کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اس بحران کے حل میں اپنا رول ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ لذا ما امیدواریم که تلاش‌های سیاسی برای رسیدن به راه حل در سوریه به نتیجه برسه. امیدواریم این تلاش‌ها بر اساس واقع نگری باشه و در هر تلاش مبتنی بر واقع نگری که از ایران برای حضور درش با رعایت احترام و عزت مردم ایران دعوت بشه شرکت خواهیم کرد۔ واضح رہے کہ امریکہ مجوزہ جنیوا کانفرنس میں شام کے حلیف ملک ایران کی شرکت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی دوران تہران میں جاوید ظریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں شریک اٹلی کی وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کے بحران کے حل میں
ईरान को भी अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए। Dramma siriano debbano avere la possibilità di assumerne le altrettante responsabilità. Quindi continueremo a far valere e a dire questa nostra convinzione profonda per quanto riguarda la partecipazione dell'Iran e ci auguriamo davvero che si trovi una soluzione per cui tutti coloro che possano siano chiamati a poter dare il loro contributo. वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और रूस की काविशों से जनवरी के आखिरी हफ्ते में जिनेवा में बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में शामी हुकूमत और अपोजिशन समेत तकरीबन 30 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मिस्र में 3 सरकर्दा जहदकारों को गैर कानूनी एहतजाज के कसूर में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों मुलजमीन पर 50,000 मिस्री पाउंड का जुर्माना भी आयद किया है। वाज़ेह है कि मिस्र की अबूरी हुकूमत ने हाल ही में एहतजाजी मुजाहरों से मुतल्लिक सख्त कवानीन मुरतब किए हैं, जिसके तहत किसी भी मुजाहरों से काबिल वजारत दाखिला से इजाजत को लाजिम करार दिया गया है। तीनों मुलजमीन को एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ करने और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने का भी कसूरवार पाया गया। मुतल्लिका जहदकारों ने हुस्न मुबारक की इख्तिदार से बेदखली के मौके पर मुजाहरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गैर कानूनी तौर पर एहतजाज करने के सिलसिले में दर्जनों मुर्सी हामियों को भी गिरफ्तार किया गया है। الغرض منه إيصال رسالة لكل الشباب المصري اللي ناويين ينزلوا يطالبوا بحقهم. ما بقولش ان احنا نازلين نتظاهر من اجل التظاهر، احنا نازلين نتظاهر من اجل حقوق ودم. لسه لغايه دلوقتي الحق لسه ما جاش، فاحنا الشباب كلها نازله. فالرساله لكل الشباب ما حدش ينزل عشان هتتحبس 3 سنين وهتاخد 50,000 جنيه غرامه. هم بيحاولوا يقولوا لنا يعني ما فيش حاجه اسمها حريه، ما فيش حاجه اسمها انسانيه، كل المبادئ بتاعت ثوره 25 يناير دي يعني انسوها، واحنا مش هننساها، احنا مكملين وان شاء الله ثابتين على كل المبادئ. आलमी मंजर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फीकस। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़े दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को एक खत लिखा है। इस खत में हिंदुस्तान ने देवयानी खोब्रागडे को एक सफारती अफसर को दी जाने वाली मराहत और इस्तिस्ना फराहम करने की ख्वाहिश की है। हिंदुस्तान ने खोब्रागडे को काउंसिल की हैसियत से हिंदुस्तानी मिशन को तबादला करने की जानकारी दी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने देवयानी के मामले पर हिंद अमरीका के बीच जारी तातुल दूर होने की उम्मीद जताई है। जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के तहत काम करने वाले 2 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर जनूबी सूडान के दारुल-हुकूमत जोबा में हफ्ते के रोज ताज़ियती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में UN अमन मिशन और सूडान हुकूमत के आला ओहदेदारों ने फौजी एजाज के साथ सलामी दी और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वाज़ेह है कि जुमे के रोज 2000 हमलावरों ने अक़बा में अक़वाम मुत्तहिदा के बेस में पनाह लिए हुए अफराद पर हमला बोल दिया था, जिसकी हिफाजत करते हुए ये दोनों हिंदुस्तानी फौजी धर्मेश संगवान और कुमार पाल सिंह हलाक हो गए थे।
इराक के मुकद्दस शहर करबला में वाक़ शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में वाक़े के 40वें दिन 40 तकारीब मुनक्किद की जाती है। इस मौके पर सैकड़ों शिया ज़ायरीन करबला पहुंच रहे हैं। बगदाद और दीगर शहरों से शिया ज़ायरीन 80 किलोमीटर आतराफ अकनाफ से सफर करते हुए करबला पहुंच रहे हैं। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए फौजी गाड़ियां और एम्बुलेंस तैयार की गई हैं। 40 की तकरीब करबला में मंगल के रोज इख्तिताम को पहुंचेगी। वाज़ेह है कि साबिक में इस तरह की तकारीब में शिया ज़ायरीन को शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया गया था। यूक्रेन की दारकूमत कीव में आज बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से लोग जमा हुए और मुल्क के सदर विक्टर यानुकोविच से ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया। इस मौके पर अपोजिशन लीडरों ने कहा कि वो उनके मुतालबात के हल तक मुजाहरे जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि यूक्रेन के सदर की जानिब से यूरोपीय यूनियन से अहम तिजारती मुआहदा न करने के खिलाफ मुल्क भर में गुज़श्ता एक महीने से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि रूस की इमा पर यूक्रेन के सदर ने यूरोपीय यूनियन से तिजारती मुआहदा नहीं किया है। जापान में दर्जनों अफराद ने एटमी तवानाई के इस्तेमाल के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। साबिक वज़ीर आज़म नाओटो ने इस एहतजाज की क़यादत की और हुकूमत से न्यूक्लियाई प्लांटों को दोबारा न खोलने का मुतालबा किया। यहां यह तस्करा जरूरी है कि 2011 में जापान में आए जलजले और सुनामी के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियाई प्लांट शदीद तौर पर मुतासर हुआ था। इस हादसे के बाद मुल्क भर में न्यूक्लियाई प्लांट बंद कर दिए गए थे। ताहम तवानाई की जरूरतों को पेश नजर रखते हुए मौजूदा हुकूमत न्यूक्लियाई प्लांट की फिर से कुशादगी का मंसूबा बना रही है। 決して皆さんの声が安倍総理に届いていないことはありません。अफगानिस्तान में 2014 के बाद नेटो फौज की मौजूदगी सवालों के घेरे में है। तालिबान के बढ़ते खतरे के पेश नजर अमरीका चाहता है कि नेटो के इनखला के बाद भी उसकी थोड़ी फौज अफगानिस्तान में मौजूद रहे। ताहम अफगान सदर हामिद करजई ने इस मामले पर तय पाए मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। हामिद करजई का कहना है कि वो ये अहम फैसला आइंदा हुकूमत पर छोड़ना चाहते हैं। अमरीका का कहना है कि मुआहदे में देरी का खमियाजा अफगानिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। क्या अफगानिस्तान में नेटो फौज 2014 के बाद भी बरकरार रहेगी? लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने भले ही अफगानिस्तान से अपने पैर वापस खींच लिए हों, लेकिन अमेरिका इस मुश्किल फैसले के लिए तैयार नहीं दिखता। अमेरिका जानता है कि उसके जाने के बाद अगर तालिबान यहाँ लोकतांत्रिक हुकूमत को उखाड़कर अपनी सरकार बनाने में सफल हो गया तो अमेरिका के लिए उससे निपटना टेढ़ी खीर साबित होगा। अमेरिका के अलावा भारत भी यही चाहता है कि नेटो फौज का कुछ हिस्सा यहाँ मौजूद रहे। अमेरिका ने अफगानिस्तान को मनाने के लिए भारत को आगे किया है, क्योंकि भारत का अपने इस पुराने दोस्त पर गहरा प्रभाव है। वैसे भी अगर अमेरिका की अगुवाई वाली नेटो सेना यहाँ से रवाना हो जाती है तो इससे तालिबान को अपना प्रभाव बढ़ाने की खुली छूट मिल जाएगी, जो भारत को हरगिज गवारा नहीं। वैसे अफगानिस्तान के आम लोग और वहाँ के सांसद भी अफगानिस्तान में नेटो फौज की मौजूदगी के पक्ष में हैं। Our economy is exactly related to the foreign aids, the money which is coming outside of Afghanistan. And the last 10-13 years we weren't able to build the infrastructure of Afghan economy. So therefore it's very important for us, because the BSAs also means good economy for Afghans, good security for Afghans, and a good way or an exit to the bright future for Afghanistan. अमेरिका करजई हुकूमत को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसकी फौज यहाँ से निकल गई तो क्षेत्र के सभी देश अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेंगे। इसके अलावा यहाँ कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा। अफगान नागरिक शरणार्थी बनकर
दूसरे देशों में शरण लेने पर मजबूर होंगे, तरक्की रुक जाएगी और अफगानिस्तान एक बार फिर पाषाण युग में पहुंच जाएगा। इस खतरे से अफगान हुकूमत भी परिचित है, इसलिए अफगानिस्तान की महापंचायत या कहें कि लोया जिरगा ने नेटो फौज के रुकने को मंजूरी दे दी है, लेकिन करज़ई ने अंतिम फैसला अगले राष्ट्रपति पर छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, इससे अमेरिका नाराज है और अमेरिकी सांसद ने कहा है कि करज़ई उसकी परीक्षा ले रहे हैं। बहरहाल अमेरिका को उम्मीद है कि करज़ई आज नहीं तो कल सही उसकी बात मान जाएंगे और नेटो की मौजूदगी इस इलाके में बरकरार रहेगी। Deferring the signature of the agreement until next year, after next year's election, would not provide the United States and NATO allies with the ability to plan for a post-2014 presence. That's of vital importance. It also puts at risk the pledges of NATO and other nations, financial pledges that were made in Chicago at the Chicago and Tokyo conferences, and it also doesn't give the Afghan people, and this is a very important component, the certainty that they need as well on their end, as they're also going into an election season. अगर अमेरिका और अफगानिस्तान में अंतिम समझौता हो गया तो ऐसी उम्मीद है कि वहां 8 से लेकर 12,000 तक नेटो फौजी जवान मौजूद रह सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से ये तादाद भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आधुनिक हथियारों और तकनीक के मामले में नेटो सेना अपने प्रतिद्वंदी से मीलों आगे है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि नेटो सैनिक किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि क्षेत्र की शांति को बनाए रखने और अफगान सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ बने रहेंगे। लेकिन अगर इराक की तर्ज पर अफगानिस्तान में भी कोई समझौता मुमकिन नहीं हो पाया तो नेटो को यहाँ से विदा होना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान में भी भारी उथल पुथल तय है, क्योंकि एक तरफ तो तालिबान का खतरा बढ़ेगा, दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान की मुदाखलत बढ़ेगी और तीसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान को दिए जाने वाला फंड पूरी तरह रोक सकता है, जो कि इस गरीब मुल्क के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है। आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वही छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को एक खत लिखा है। इस खत में हिंदुस्तान ने देवयानी खोब्रागडे को एक सिफारती अफसर को दी जाने वाली मराहत और इस्तिस्ना फराहम करने की ख्वाहिश की है। हिंदुस्तान ने खोब्रागडे को
काउंसलर की हैसियत से हिंदुस्तानी मिशन को तबादला करने की जानकारी दी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने देवयानी के मामले पर हिंद अमरीका के बीच जारी तालतुल दूर होने की उम्मीद जताई है। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के अंकल जैंग सोंग थीक को गुज़श्ता दिनों सजाए मौत दी गई है। हुकूमत में आला ओहदे पर फायज रहे जैंग को बदनवानी और गद्दारी के इल्जामात के तहत सजा दी गई है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने इस मामले की शदीद मजम्मत की है और इससे शिमाली कोरियाई हुकूमत के सख्त रवैये की एक मिसाल अया हुई है। क्या उत्तर कोरिया की हुकूमत मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे क्रूर हुकूमत है? लगता तो ऐसा ही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के अंकल चांग सोंग थाएक को जिस तरह आनन फानन में सजाए मौत दी गई, उससे हुकूमत की क्रूरता का पता चलता है। थाएक को कुछ दिन पहले ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था और उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उन्हें सरकारी बैठक से घसीटकर बाहर निकाला गया। एक बयान में उन्हें बेहद घटिया, विश्वासघाती और देशद्रोही करार दिया गया। थाएक के अलावा उनके 2 साथियों को भी मौत की सजा दी गई। ये घटना बताती है कि उत्तर कोरिया की हुकूमत किसी पर भी भरोसा नहीं करती। And we would urge the North Koreans not to take provocative acts, not to do so going forward because it's not in the interest of regional stability. लोकतंत्र के इस दौर में भी उत्तर कोरिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पूरी दुनिया के लिए रहस्यमय बना हुआ है। सरकारी मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा खबरें प्रसारित करता है और उस पर बेहद सख्त नियंत्रण है। यहाँ के नागरिकों को बेहद कम अधिकार हासिल है। हुकूमत या सेना की बुराई करने की सजा केवल मौत है। अपनी ताकतवर फौज के दम पर यह देश अपने पड़ोसियों, खासकर दक्षिण कोरिया और सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को भी आंखें दिखाता है। कुछ दिन पहले यहां 60 से ज्यादा लोगों को महज इसलिए फांसी की सजा दे दी गई क्योंकि वो दक्षिण कोरिया का टीवी प्रोग्राम देख रहे थे। टीवी देखने पर ऐसी सजा शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और दी जाती हो। यही वजह है कि उत्तर कोरिया की उसकी नीतियों के चलते सारी दुनिया में निंदा होती आई है, लेकिन शायद उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उत्तर कोरिया की हुकूमत को नापसंद करते हैं। किम जोंग इल खराब शासक थे और उनका बेटा किम जोंग उन भी बेहद खराब शासक है। उत्तर कोरिया में भले ही गरीबी और भुखमरी दस्तक दे रही हो, लेकिन वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। सैन्य बजट पर बेतहाशा खर्च करने वाला ये देश कभी मिसाइल परीक्षण तो कभी किसी और वजह से लगातार पश्चिमी देशों के निशाने पर रहता है। उत्तर कोरिया पर तमाम देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे यहाँ हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत इससे पूरी तरह बेफिक्र है। दुनिया भर के देश भले ही तरक्की की रेस में बहुत आगे निकल चुके हों, लेकिन उत्तर कोरिया के लिए वक्त का पहिया ठिठक गया लगता है। टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच एक दिलचस्प मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया है। दूसरी इनिंग्स में जीत के लिए दरकार 458 रनों का ताक़ुब करते हुए जनूबी अफ्रीका आखिरी रोज के खेल के इख्तिताम पर 7 विकेट पर 450 रन ही बना सकी। डिविलियर्स और डु प्लेसिस की शानदार सेंचुरियों के बाद ऐसा लग रहा था कि मेजबान टीम जीत के करीब आ रही है। तमाम आखिरी कुछ ओवरों में टीम इंडिया के गेंदबाजों और फील्डरों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मैच को ड्रॉ करने में कामयाबी हासिल कर ली। इससे कबल जहीर खान जैक एलिस की विकेट हासिल करके टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेटें हासिल करने का एजाज हासिल कर चुके हैं। जहीर ये कारनामा अंजाम देने वाले हिंदुस्तान के चौथे खिलाड़ी बने। इंस्टिंक्टिव रिएक्शन मुझसे पूछेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान भले ही 2 अलग अलग मुल्क हों, लेकिन इन दोनों मुल्कों की तहजीब और रहन सहन एक जैसा है। दोनों मुल्कों की मुश्तरका तहजीबी रिवायत का मुजाहरा इन दिनों कानपुर में देखने को मिल रहा है। शादी के मलबूसात की एक नुमाइश कानपुर में लगाई गई है। इस नुमाइश में पाकिस्तानी फैशन के मलबूसात कानपुर के शहरियों को काफी पसंद आ रहे हैं।
شادی میں استعمال کیے جانے والے روایتی ملبوسات کی نمائش ان دنوں خوب پسند کی جا رہی ہے، لیکن پاکستانی ڈیزائنرز کے ملبوسات شائقین کی خاص توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ نمائش میں حصہ لینے والی پاکستانی ڈیزائنرز کا کہنا ہے کہ یہاں کی نمائش میں حصہ لینا ان کے لیے خوشگوار احساس ہے۔ Very good exhibition, and it's a very good marketing experience. They were very nice, very hospitalization was so good کہ ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم اپنی کنٹری سے باہر سے ہیں. It was really nice. Sorry? آپ کے اسٹال میں کیا کیا؟ ہمارے اسٹال میں اسٹیچڈ انسک کرتیاں ہیں، پٹھانی ہیں، زمز ہیں، ہمارے کافتانز ہیں، پھر شال والے پشمینہ ہیں، پشمرینہ ہیں، سب ویرائٹی ہے ہمارے پاس، کرنڈی ہے۔ نمائش میں پاکستان کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فیشن ڈیزائنروں نے بھی شرکت کی۔ ان میں مسلم طرز کے ڈیزائن کردہ ملبوسات خوب پسند کی جا رہی ہیں۔ لاسٹ ٹائم تو ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اینڈ اٹ واز ریئلی گڈ اینڈ دس ٹائم آلسو مینس دو آئی ایم گیٹنگ مینس the people are appreciating my work and as my boutique is in Lucknow, it's very nearby. 3 دنوں تک چلنے والی اس نمائش میں گرچہ شادی میں استعمال ہونے والے ملبوسات کی ایک بڑی رینج موجود ہے، روزمرہ استعمال میں آنے والے سادہ کپڑے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں۔ ETV نیوز کانپور۔ عالمی منظر میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ عالمی منظر کو پیش کرنے میں تعاون کیا Orchid Residency, where life comes alive. بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ کہ موج ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے، بات وہی ہے ایک غزل کی، میں لکھوں یا میر لکھے۔ میں نے خواب جو دیکھے ان کو میں لکھ لکھ کر ہار گیا، اب میرے بات کا لکھنے والا خوابوں کی تعبیر لکھے۔ پرانی نسل کچھ خواب دیکھتی ہے، نئی نسل اس کی تعبیر تلاش کرتی ہے۔ ہزاروں سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں خواب دیکھنے کا حق ہے، خواب دیکھنے کا حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اس کی تعبیر نئی نسل کو تلاش کرنے کا بھی حق ہے۔ آئیے نئی نسل کا ایک ایسا نمائندہ شاعر جس کا ایک ایک شعر آپ کو چونکائے گا، میں بہت اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نام ہے جناب طیب پاشا قادری کا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرمائیے گا کہ کیسی دنیا ہو گئی، کیسا زمانہ ہو گیا، کیسی دنیا ہو گئی، کیسا زمانہ ہو گیا، جو محافظ تھا ہمارا وہ لٹیرا ہو گیا، جو محافظ تھا ہمارا وہ لٹیرا ہو گیا، عدل کی امید لے کر ہم کہاں جائے کوئی، عدل کی امید لے کر اب کہاں جائے کوئی، مجرموں منصف میں طیب بھائی چارہ ہو گیا، مجرموں منصف میں طیب بھائی چارہ ہو گیا، کیسی دنیا ہو گئی، کیسا زمانہ ہو گیا، جو محافظ تھا ہمارا وہ لٹیرا ہو گیا۔ ایک مطلب ایک دوسرے سمجھ ملے گا۔ رواج و رسم میرے ملک کے نرالے ہیں، رواج و رسم میرے ملک کے نرالے، رواج و رسم میرے ملک کے نرالے ہیں، رواج و رسم میرے ملک کے نرالے ہیں، ضمیر بیچنے والوں کے گھر اجالے ہیں،